ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਗੋਗਵਾਨੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। A very pleasant and a healthy good morning to our honorable chief guest, respected principal sir, worthy teachers, and everyone present here. On the behalf of SSK Dental College, I, Agamjeet Kaur Maan, and I, Ishnoor Gogwani, extend a very sincere and a warm welcome to all of you gathered here to celebrate the anti-ragging function of our college. Anti-ragging function is conducted to escort a warm welcome to the freshers and providing them a comfortable environment around. Hence, to celebrate this function today, we all are gathered here. And before proceeding further with today's function, we would like to thank our respected principal sir for giving us their consent to begin with today's function. And we are finally having our chief guest with us. So please give a big round of applause for them. We feel honored to have with us the Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Puneet Girdhar. He is BDS, MDS, PhD in Ayurveda and a member of FICD USA. He has been serving in this field since 28 years. He has served as a Joint Director, Medical Education and Research, Punjab, Joint Director in charge Dental, Department of Medical Education and Research, Punjab, Joint Director in charge Ayurveda, Department of Medical Education and Research, Punjab, Member of Board of Studies, Punjab University, Chandigarh, Member Dental Council of India, Registrar Punjab Dental Council, Mohali, former Senate Member, Baba Fareed University of Health Science, Faridkot, past National Vice President, Indian Dental Association, Registrar Punjab Nursing Council, Mohali. He has also put his contribution towards various known publications. He has conducted over 100 workshops, seminars and conferences. He has been a national awardee and has received Dr. Ramkant Benson Award for 2001 for the student and dental activities in Indian Dental Association. He has also been awarded by Punjab Academy of Sciences 2018 in the recognition of achievements and contributions in medical science. Awarded by first prize in state PCMS Doctor for doing commendable work under Intensive Dental Health Care Program. So, you have made all of us stunned by numerous work and capacity. So, on the behalf of the management, we thank you for providing your gracious presence to join us today to enhance our joy. And as a token of respect and honor, Dr. Harpreet Kaur, Dr. Sukhmaneet Kaur, Dr. Naan, to our respected chief guest for the day. So please give a big round of applause. Right, sir. Thank you. Ani sir, yes sir, yes sir. Madam, please. Yes sir. Right sir, wait, please, wait. Thank you. We are very thankful to sir for accepting the honor. As we all know, we celebrate this anti-ragging program every year in our college to continue this remarkable tradition and honor the legacy of our college while keeping the motto of anti-ragging alive. It is neither possible nor desirable that a high-handed discipline and punishment to be used to stop ragging. If this social evil has to be eradicated, it must happen through the understanding and efforts of the student body. Not only they should not rag others, but should also prevent ragging from happening. We, the students of SKSS Dental College, ensure that our juniors are in safe hands. Basically, ragging at its most harmless is embarrassing and silly,
but at its worst, it attempts to prevent individual students from independent thinking, attempts in fact to eradicate free will. Ragging is not merely a social legal problem. It has certain psychological basis too. As ragging has been a means of fear, shock for freshers, this evil has targeted many lives before. But it gave us immense pride to tell all of you that our campus is a ragging-free campus, and all the credit goes to our worthy teachers, our wonderful faculty, and our respected seniors. And now, I really like to invite our respected principal sir, Dr. Akshay Sharma, to come upon the stage and request him to share his words with all of us. So please give a big round of applause to him. Good afternoon, everybody. I welcome Dr. Puneet Girdhar. We are honored that he consented to preside over this function, even after having a very busy schedule. So, my dear faculty and students, I assure Dr. Girdhar that our campus is a ragging-free campus. We have got very well-disciplined students over here, and you will not find any complaint of ragging in my institute, thanks to my staff and my cooperative students. So I will not take much time. And today is the World Health Day, so I pray to God to bless us all to overcome this COVID crisis, and I request all of you to take appropriate preventive measures and be safe. God bless us. Jai Hind. Thank you. We request our chief guest for the day, Dr. Puneet Girdhar, to please come onto the stage and share his words with us. Please give a round of applause to him. Thank you, Dr. Akshay. From the core of my heart, for inviting me to this institution. Early once I also came to this college. I'm thankful to management, your teachers, staff members, my colleagues, and dear students. Most grateful and most thankful to dear students because आप हो तो कॉलेज है, आप हो तो हम हैं। बिल्डिंग्स कॉलेज नहीं बनाती, पैसे कॉलेज नहीं बनाता। It is only you people, the students, I must say the backbone of any institution or this institution in specific. Dr. Akshay invited me for anti-ragging lecture. कि बॉस कुछ naturally it's obvious कि ragging के बारे में कुछ बताऊंगा मैं. But in his address he said, this is a ragging-free institution. So I think there is no need of anything on ragging. You all are, I believe, so well behaved. I believe. And this is
This institution is having zero tolerance toward ragging. पहली बात तो यह है कि एज अ गेस्ट और एज ए इनवाइटी या कुछ भी है, पहली बात तो ये कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा, कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि ज्ञान तो सुबह व्हाट्सएप पे आपको मिल जाता है रोज। सिर्फ एक इंटरेक्शन है। When I was passing through the Rangoli, you all have made beautiful Rangolis and that flower arrangement. तो उसके जो प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर है रंगोली, that was a good Rangoli. फ्रेंडशिप का मैसेज था। So everywhere there is a message. I think वो नहीं, हम अगर हम वैसे इंटरेक्ट करेंगे बातें, वहां इंटरेक्शन का भी लिखा हुआ था कि इंटरेक्ट विद जूनियर्स, नो बुलिंग, नो रैगिंग। अच्छा, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि इस जो ऑडिटोरियम में वी हैव फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर इंटर्न्स। ओके, यूजुअली जब रैगिंग होती है ना, तो पहले कुछ कॉलेजेस में किया तो जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक आता है कि जी आपने एंटी रैगिंग लेक्चर देना है। तो एक बार मैं किसी कॉलेज में गया तो उन्होंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वहां बिठाया हुआ था कि सर हर साल रैगिंग लेक्चर होता है हमारा, हर साल हम लेक्चर ऐसे करवाते हैं एंटी रैगिंग का, तो फर्स्ट ईयर को अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है। आई सेड इनकी तो रैगिंग होनी है, समझाना तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल वालों को है, इनको क्या समझाना है। अच्छा, बट एक दो चीजें मैं रैगिंग के लिए जरूर बोलूंगा, वो निकाल दे। डेफिनेशन बड़ी लंबी है, मुझे कभी कॉलेज में नहीं याद हुई डेफिनेशन, यहाँ तो क्या याद होगी। अभी तो बताऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे में बताऊंगा डेफिनेशन की। पहले थोड़ा सा इसको समझा लूंगा ये क्या सिस्टम है। अच्छा, अब जब भी किसी से इंटरेक्ट करते हो ना, किसी से मिलते हो, लाइक इन फर्स्ट ईयर, तो नेचुरली पहले होता है कि इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद होता है कि आपकी हॉबीज क्या है। तो वो वहीं से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। इंटरव्यू में जब आप जाते हो, पूरा एकेडमिक आपका वो क्वालिफिकेशंस, ये वो एक्सपीरियंस, और लास्ट में कॉलम होता है हॉबीज, जिसको लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आई एम एडमिनिस्ट्रेशन साइड, चंडीगढ़ में हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में हूं। कॉलेज काफी पहले छूट गया था, डेट बाय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। तो मेरी दो हॉबीज हैं जिनको हर जगह मैं प्रमोट करता हूं। एक तो लिसनिंग टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। आप तो नहीं, आपके पेरेंट्स शायद सुनते होंगे। आपकी हॉबीज तो चलो, एक तो साल 2 साल से जो कोरोना है, ये सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आप बैठे हो, आपके बीच में क्रॉस बैठे हैं, तो ये हमारे या हमसे पहले वाले जमाने में वैसी ही सोशल डिस्टेंसिंग होती थी, दूर दूर। Disconnected. तो तभी शायद ये जो डिजीजेस हैं, वायरसेस हैं, बीमारियां नहीं होती थी। आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कॉलेजेस में इतने करीब आ गए एक दूसरे के कि नेचर ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा इनको अलग। तो जब कोई पीक होती है तो नेचर अपने आप ठीक करती है। तो दैट्स व्हाई ये नेचर का एक वो है। अच्छा, जब
पहले भी ये लेक्चर दिए मैंने या कई फंक्शंस पे गए तो बड़ा अच्छा लगता था कि सभी लोग यहाँ ना जैसे इकट्ठे हो गए बैठे हैं तो इंटरेक्शन का बड़ा मजा आता था। अब दूर ऐसे तो अच्छा माई सेकंड हॉबी, पहली लिसनिंग टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, सेकंड इज पोएट्री। प्रिसाइजली हिंदी पंजाबी इंग्लिश सारी पोएट्रीज पढ़ी हैं। माई फेवरेट इज उर्दू पोएट्री। तो वो शुरू से बचपन से ही था, तो जहां जाता हूं मेरे साथ चलता है वो। आवाज अच्छी नहीं है तो गाना सुना नहीं सकता आपको मैं, तो बट वो पोएट्री जिसको बोलते हैं कि मेरे हर आरबीसी में है, वही थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन इंटरेक्शन बातों बातों में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हो गए थे आपके, तो जिंदगी के सवाल होंगे, नथिंग रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। वो अगर आपको कुछ लगेगा तो यू कैन आस्क। मुहावरे, इडियम्स, जी वो हम सबने बचपन में पढ़े हैं। तो जितना छोटा शेयर होता है ना, I want to promote poetry. This aspect, literary aspect, extracurricular activities, they are so much important in your life. आपका किरदार, आपकी पर्सनैलिटी इन्हीं हॉबीज पे बेस्ड होती है। हाँ, साथ चलनी चाहिए हॉबीज आपके। कुछ से की बात करता हूं तो ये नहीं कि मैं आपको गालिब सुनाऊंगा, तो वो तो ऊपर से निकल जाएगा। सिंपल सी बातें आपके साथ में शेयर करूंगा आप ही की लाइफ पे, बिकॉज जब स्टूडेंट्स को एड्रेस करना होता तो आई बिकम पैशनेट, बिकॉज आई गो बैक इनटू माय एरा, योर एरा, इसी एरा में पहुंच जाता हूं। अभी शोकी वॉज हियर, शी वॉज माई स्टूडेंट एट दशमेश डेंटल कॉलेज, तो शी इज फैकल्टी ओवर हियर, तो यू आर माई ग्रैंड स्टूडेंट्स। एक मुहावरा है, बातों में आ जाना। कई होते हैं बातों में आ जाना। अब इसको जनरेटर है या आवाज ऊंची करूंगा। मैं प्रेसिडेंट था कॉलेज का, तो इसलिए आवाज वो नारे लगाते थे ना, तो तब से प्रैक्टिस हुई है। Bluetooth mode. Connected. अभी जाओ, ये फीमेल्स पीछा नहीं छोड़ती। बातों में आ जाना, उसमें एक छोटा सा शेयर है। बातों में आना पर्सन इज वेरी सिंपल। अब अगर 10 मुहावरे आते थे तो हम हर एक में हमारा वो होता कि राम ऐसा बंदा है, श्याम ऐसा बंदा है, तीसरा कोई नाम नहीं आता था। बट एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अच्छा, एक बात मैं कहूंगा कि आप बातें थोड़ा सा बाद में कर लेना कि कहीं कुछ मिस ना कर जाओ। ये चीजें जो आप साथ लेके जाइएगा, ये एस्पेक्ट अगर किसी में आता है तो आई एम एड्रेसिंग अराउंड 100 स्टूडेंट्स, तो इसमें 1, 2, 3 लोग अगर ये बातें साथ लेके जाते हैं तो आई थिंक दे विल बी वेरी। इसमें मैसेज भी है, सब कुछ है। मुझसे बातें करके देखना, वेरी सिंपल। मुझसे बातें करके देखना, मैं बातों में आ जाता हूं। This describes the simplicity of a person. अच्छा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर में बताया कि आप मिलते हो, इंट्रोडक्शन हुई, हॉबीज पूछी। अब गर्ल्स के पास बहुत हॉबीज होती हैं, लाइक रीडिंग, पोट्री, पेंटिंग, रंगोली, डांसिंग, ये बड़ा कुछ।
पंगा होता बॉयज का, इनके बेचारों को पता नहीं होता हमारी हॉबी क्या है। ऐसी जब वो अच्छा पूछते लड़के ही हैं आपकी हॉबीज क्या है। अच्छा लड़की में जवाब दे देती है कि हाँ ये हॉबीज है, और जब वो वापस पूछती है तो अब वो जवाब जो भी देते हैं लेकिन अंदर की जो उनकी बात है वो अगेन एक फर्स्ट ईयर की बात है, वो मैं आपसे इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री शेयर है, बड़ी सिंपल आपसे शेयर करूंगा। हॉबीज मीन शौक। क्या आपके शौक है? तुझे रोज देखूं करीब से, तुझे रोज देखूं करीब से, मेरे शौक भी अजीब से। अच्छा फर्स्ट ईयर तो पता ही नहीं चलता कि ऐसे कभी कॉलेज देख लिया, कभी इधर देख लिया, उधर देख लिया, टीचर उधर देख लिया कि ये होता है, प्लस 2 के बाद आया था, टोटल एनवायरमेंट चेंज होता है। देन वी रीच सेकेंड ईयर। बॉयज को ढूंढने पड़ते हैं आपके लिए बीच में। गालिब का एक शेर है, बहुत सिंपल सा, 2 लाइन्स का सुनना आप। रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपके तो लहू क्या है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। इसका वर्ड मुझे रगों पसंद आ गया। रगे आपको पता है, ब्लड वेसल्स। सो रगों से एक मैंने लाइन लिखी थी, अब ये सेकेंड ईयर में हो गए बॉयज। तुम मेरे दिल में और दौड़ती हुई रगों में रवा हो। ये समझ आ गया, तुम मेरे दिल में। अब लड़के क्या, इन्होंने हर वक्त क्वेश्चन ही करने होते हैं। तुम मेरे दिल में और दौड़ती हुई रगों में रवा हो, पर मेरे हाथ की लकीरों में कहां हो। अच्छा फर्स्ट ईयर जो होती है ना, वो दैट इज अ पीरियड ऑफ क्रशेस एंड इन्फैचुएशंस। वो चेंज होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कुछ और है, सेकेंड ईयर में कुछ और है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ चॉइस ना, तो फिर बंदे को उस हिसाब से दिल भी बदलता है। और मेडिकल फील्ड में ये लड़कों को ना थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि लड़कियां ज्यादा होती हैं, बॉयज का होता है, सो दे हैव अ वाइडर चॉइस। अच्छा आजकल ना ये कुछ भी करना है तो आप बड़ा इजी मेथड है, मोबाइल है आपके पास, तो ये यू कैन सेंड ए मैसेज। उसमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होती है। हमारे टाइम में चिट्ठियां चलती थी, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं होते थे, चिट्ठियां चलती थी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो ये दिस इज द पीरियड ऑफ प्रपोजेस। अब थर्ड ईयर में जाके ना, जिसको हाँ होनी हाँ हो जाती है, हाँ ना होनी ना हो जाती है। तो बट आई विल टेल यू, छोटी गिनती में बैठे बॉयज जो है, कि जहां भी चले जाओ, फीमेल्स विल ऑलवेज बी स्मार्टर देन बॉयज।
वैसे ये बात मेरे पॉजिटिव नहीं बोली थी और हमने चलो अच्छा लगा आपको। अच्छा, अब मोबाइल तो देख लो आपने, मैसेज अक्सर आजकल तो बताया ना कि पहले तो क्या लिखें, चिट्ठी दे के ना दें, कहाँ पे दें, कैसे दें, मोबाइल हर एक के पास है। अब बस ये देखना होता है मोबाइल उसके हाथ में भी नहीं है, उसके पापा के हाथ में तो नहीं है, बाकी सब या किसी और के हाथ में नहीं, वो देखना होता है। अच्छा, एक बंदा मैसेज कर रहा है, अपने तरीके से प्रपोज कर रहा है, देखा मोबाइल में, मैसेज भेज दिया, देखा एक टिक आ गया, मैसेज चला गया, अब मेरी तरफ से तो गोली चल गई। थोड़ी देर बाद 2 टिक आ गए, लॉजिक पहुंच गया, मैसेज पहुंच गया। फर्स्ट और सेकंड टिक के बीच जो फासला है ना, ये प्यार है। ये इंतजार है ना, बस यही प्यार है। अच्छा, उसका अगला स्टेप कि भाई टिक्स ब्लू हो गए, तब जाके बंदे को लगता है लॉजिक क्या बात है, मिशन सक्सेसफुल। आजकल पीछे करब तो ठीक है, ये प्रॉब्लम्स बॉयज को बहुत ज्यादा आ रही थी, मतलब गर्ल्स इनका ख्याल रखोगी कि वो ना ऐप है कि वो आपको ब्लू नहीं होते आजकल, तो बंदे को पता नहीं चलता है पढ़ा नहीं पढ़ा। ऐसे ना, ये हमारे जमाने में नहीं था इतना फास्ट मेथड, हमारे तो चिट्ठियां चलती थी। तो अब जो जिसको हाँ होगी भी वो तो ना कुछ लिखना ना कुछ करना, वो तो अपना मस्त हो गया। अब जिनको ना होती है, कुछ तो बंदे देखो होता कि लाइफ मूव्स ऑन, चलो भाई आगे कोई बात नहीं। कुछ सीरियस टाइप के लोग होते हैं, वो मतलब थोड़ा सा दिल पे लगती है उनको। हमारे एक आध हमारी क्लास में भी थे, तो इस पोएट्री को 3rd ईयर वाला स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे इस पैराग्राफ को। ये बहुत ही सेंसिटिव शेयर है, सिंगल पैरा, फ्रॉम अ रियल loving serious boy. After dropping of चिट्ठी, मैसेज भी बात नहीं करना हो। जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, एक खत मैंने तुम्हें लिखा था परेशानी में। जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, एक खत मैंने तुम्हें लिखा था परेशानी में। लिखा था कि सहारे की जरूरत है मुझको, कर दोगी सहारा तो इनायत होगी। कर दोगी सहारा तो इनायत होगी। एक साथी की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, एक साथी की जरूरत तो तुम्हें भी होगी। कर लो शामिल मुझे अपनी आंखों की निगहबानी में। जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, एक खत मैंने तुम्हें लिखा था परेशानी में। बड़े पुराना ना लुधियाना में कॉन्फ्रेंस, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत साल पहले, 2000 के आसपास। जितनी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होती थी मुझे ये बुलाते थे इसके लिए, एंकरिंग के लिए। तो ऐसे ही मैं शेयर पढ़ रहा था, तो एक लड़की आई, कहती सर ये शेर आप बोल कि आप अच्छे बोल रहे हो। मैं कहता थैंक यू, कि आप ये बोलो। तो वो जो ये मेरे वाला बंदा है जो मैंने अभी शेर सुनाया, वो इससे भी एक स्टेप आगे था।
जब ये हालत होती है तो फिर ये सीरियस टाइप बहुत आगे बढ़ती है। वो पंजाबी में था, शायद आपने सुना होता है। वो सीधा फिर ना आत्मा का परमात्मा से मेल जो होता है उस स्टेज में पहुंच जाते हैं वो, और भगवान को कोसते हैं, रब्बा तेनू भी पता है कि होता है दुनिया से। एंड ही क्वेश्चंस गॉड, वो खुदा को, भगवान को, अपने को, रब को चैलेंज करता है। ऐ रब्बा तू कदे इश्क कीता? प्लीज चलेगी यार, मेरी हालत समझो। ऐ रब्बा तू कदे इश्क कीता? जे नहीं कीता था कभी भी ना। ऐ रब्बा तू कदे इश्क कीता? जे नहीं कीता था कभी भी ना। रोएगा पछताएगा, रोएगा पछताएगा। आशिक तो मार के तेरे को लाते हैं, तू मर गया तो कितने जाएगा? अच्छा, ये अब उस लड़के की बात कर रहा हूं मैं, कैन बी रिवर्स ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो। अब रैगिंग बोलते हैं जी, बड़े लेक्चर सुने आपने, डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बट एक बात मैं बताऊंगा कि ये रैगिंग वैसे बड़ी गलत बात है। बातों में सब ठीक है जो है, लेकिन टॉर्चर करना, ये करना बड़ी, वो कहते हैं कि हम इन्फ्यूज कर रहे हैं इनमें, हम सेल्फ एस्टीम इंड्यूस कर रहे हैं, इन्फ्यूज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और नॉनसेंस, कुछ नहीं है। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सीनियर्स एंड जूनियर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा। टीचर्स कौन से याद रहेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता, पता नहीं है, बट ये स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको जरूर याद करेंगे। आई ऑलवेज से नॉट द गोल्डन डेज, दीज आर द डायमंड डेज ऑफ योर लाइफ। रियली आई एम टेलिंग यू। अभी आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे से चलती है, वो मेरे से चलता है, चलते तो कभी होते नहीं, हम तो कभी चलते नहीं थे पढ़ाई में। तो ये फीमेल से जलन जरूर करे मामला में, बॉयज तो बोले क्या बात है, पढ़ लिए नहीं पढ़ लिए, ना पढ़ लिए, चक्कर नहीं। अच्छा, ये जो अभी मैं बात बता रहा था ऐ रब्बा वाली और वो वाली, भाई देखो ये फीमेल्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लड़कियों को, भाई जो भी आए तो उसको थोड़ा सा प्यार से, आप ऐसे नहीं सीधा ना नहीं कर दो, हाँ खा भी ना भाई, इसको मैं इनडायरेक्ट रैगिंग बोलता हूं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनडायरेक्ट रैगिंग। वो ठीक है, आप फर्स्ट ईयर वाले की नहीं कर रहे बेचारे की, अब थर्ड ईयर में तो फाइनल वाले ही कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो, उसकी फर्स्ट ईयर में हुई, जब याद आज रैगिंग कर रहे हो उसकी, आप इनडायरेक्ट रैगिंग। अब वो बंदे को, मैंने कहा था डेफिनेशन बाद में सुनाऊंगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैगिंग। अब उस बंदे को ख्याल में करिए और रैगिंग समझिए। ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बनाई है, इसमें आपको बंदा याद करिए, ठीक है, कि क्या उस पर बीत रही है। नो, बिकॉज जिसके लिए मुझे बुलाया है, जिसके लिए मुझे भेजा है रजिस्ट्री ने, भाई वो मैसेज तो मुझे देना ना, उनका बता के क्या है, ये बातें करके आ गया, बेफजूल बातें करके आ गया। अब इसका एक ही वर्ड सुनना, रैगिंग मीन्स डिस्प्ले ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। अब आप समझ रही हो ये कौन कर रहा है, डिसऑर्डरली कंडक्ट। Ragging means display of disorderly conduct which causes or is likely to cause, यहां तो आपने उसको उस हालत पे ले गए या अभी जाएगा, which causes or is likely to cause physical or psychological harm, physical or psychological harm, or रेज एप्रीहेंशन और फियर। अब वो डरा हुआ है कोने में बैठा अपने कमरे में, आपकी फोटो लेके, ठीक है, अब ये नहीं पूछो तो एप्रीहेंशन, बेचारे का डर हो गया, और रेज एप्रीहेंशन और फियर और शेम और एम्बैरेसमेंट टू अ स्टूडेंट
in an educational institution. अभी ये मैं आपको पहले बताता, आपको समझ नहीं आना था, अब आपको समझ आ गया नाम से. So please don't do harm. रैगिंग मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट रैगिंग बात कर, वो आप मत करो. अच्छा, 3rd ईयर में पहुंच गया. अच्छा, एक तो वो था बंदा, एक और बंदा जो अब मेरे लोग कॉलेज में ऑलवेज बी लॉस्ट. दूर से पता लग जाता है कि बंदा किसी उसमें फ्रेम ऑफ माइंड, टिपिकल फ्रेम ऑफ माइंड है बंदा. मेरा फ्रेंड था, नाम तो नहीं बताऊंगा, इज ऑल्सो डेंटिस्ट, 3rd ईयर में. उसकी ये हालत होगी. बट आप हॉस्टल में जाके देखो, ये बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल, कितना डिफरेंस है. गर्ल्स के रूम में जाकर नीट एंड क्लीन, खैर हम गए नहीं कभी, सुनते ही हम. अच्छा, बॉयज का देख लो, रूम्स, एक वर्ड होता है मेस. मेस बेड होती है जिसमें हम खाना खाते हैं. तो ये जब एग्जाम होते हैं तो इधर उधर से कहीं देख के मतलब पता नहीं लगता कि किस बुक में से कौन सा कहीं पढ़े. इट इज सो मेस. वो कर तो जितना भी समझ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इधर है, 2 इधर है. तो बट इसको मैं उस फॉर्म में बड़ा अच्छा मुझे शेयर लगता है. मैं बुक्स की किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं ख्वाबों और ख्यालों की बात करता हूँ. आधे यहां, आधे वहां. अच्छा, मुझे ना एक छोटे शेर बहुत पसंद है जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, बट ब्यूटीफुल. आधे सेंटेंस में पूरा मैसेज. आधे यहां, आधे वहां, आधे यहां, आधे वहां, रखे हैं ख्याल तुम्हारे जाने कहां कहां. अच्छा, स्ट्रॉन्ग, ये 3rd की बात कर रहा हूं. स्ट्रॉन्ग बंदे ही होते हैं, कोई बात है, परवाह नहीं करेगी, चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेने का, देने का. गर तेरा, ये बड़ा फेमस शेर है. गर तेरा ये तौर है तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही. सो बॉयज, बी हैप्पी. ये सीखो आप, बिकॉज मैंने पहले बताया कि दे आर 100 times स्मार्टर देन यू. फीमेल्स, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लाइफ मूव्स ऑन, गाड़ी चलती है. देख मेरा तो रैगिंग में थोड़ी कुछ रह गया. हाँ, फाइनली अब मैं उनकी बात करूंगा जिनको हाँ हो गई. अब वो एक अलग ही दुनिया में है. और पता है कि ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब तो है नहीं, बट खुश है, एक अलग ही दुनिया में है. उसमें होनी चाहिए, होनी चाहिए, बता रहा हूं. अच्छा, एक बात भी जो मैं जरूर कहूंगा कि ना आजकल ये बढ़ा रहा है कि ये जो हमारा प्रोफेशन है डेंटिस्ट्री, दैट इज एन ओल्ड गर्ल्स, ये बोलते हैं. बट बिलीव मी, तो सच्ची बता रहा हूं ना, ये ना फेजेस हैं नेचर के. अब जब हमारी एडमिशन की आयुर्वेदा का जो था, कोई फेज था कि पहले MBBS, देन BDS, फिर आयुर्वेदा, ऐसे स्ट्रीम चलता है. तो ये जो कंडीशन है, सिचुएशन है आयुर्वेदा में थी, ऐसे टाइम निकला. अब अगेन देखो, गवर्नमेंट की प्रपोजल है, गवर्नमेंट इसको अपलिफ्ट कर रही है. नाउ देयर इज पीपल आर लिविंग डेंटिस्ट्री, पीपल आर लिविंग एवरीथिंग, एंड आयुर्वेदा में जा रहे हैं, MBBS के बाद उसमें जा रहे हैं. ये फेजेस हैं, बिलीव मी. अप्स एंड डाउन लाइफ के हैं, लाइफ बहुत बढ़िया. वी
are into a beautiful profession. मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको मोटिवेट करके मैंने इसलिए बातें की आपसे, वो सीधी बात, नो बकवास, ठीक है? तो वो नहीं करूँगा कि हाँ जी यार ये क्या बात है, ये वो करके, नो डाउट वी आर पासिंग थ्रू हार्ड फेज, बट वी हैव अ individually we have a brilliant future. I belong to Bathinda. 88 में मुझे एडमिशन मिला BDS में. तब at that time अच्छा था प्रोफेशन, बहुत अच्छा था, बढ़िया, बेटर देन मेडिकल प्रोफेशन. आप यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आपको कुछ समझा तो सकता नहीं. वी आर गोइंग थ्रू द सेम बुक्स अप टू थर्ड ईयर. फाइनल हमारी बुक्स अलग होती हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एवरीथिंग वी आर रीडिंग. यू हैव अ डिफरेंट विजन एंड हॉराइजन. अमृतसर से मैंने BDS किया, अमृतसर से ही मैंने MDS किया. जिस दिन मेरा MDS, आई कंप्लीटेड माय MDS in 2005. 2002 to 2005 was my batch. जॉब्स बड़ी देर बाद निकलती हैं, तो साइमल्टेनियसली से एक बार जॉब भी निकली 98 में, और PG का टेस्ट भी था. दोनों टेस्ट दिए मैंने, वर्कड वेरी हार्ड, दोनों जगह मेरी सिलेक्शन हो गई. एंड बट आई जॉइंड जॉब बिकॉज एट दैट टाइम आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली. Both my parents were teachers, so शादी भी जल्दी हो गई थी, तो इसलिए that was more important. I worked very hard उसमें, so I preferred job over MDS. मुझे तो एक प्रोविजन है कि जॉब के बाद आप MDS कर सकते हो. अगर आप MDS करने चले गए तो जॉब आपकी नहीं, बाद में आए ना आए. So I adopted that method. पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ऐसे ही चल रहे थे. अमृतसर में था मैं, बट एक डिटर्मिनेशन था, I will do something. मैं बाकी की तरह नहीं हूँ. Believe me, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी जो अभी स्टूडेंट मेरे आए थे, they know my struggling period. तो आई विल नॉट बोस्ट, 18 घंटे मैंने काम किया, स्टिल आई एम वर्किंग 18 आवर्स. नो बैकग्राउंड, नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, नथिंग. Presently I am at the government level. I am heading the Department of Dentistry, Punjab. Additionally, I am heading the Department of Ayurveda. Additionally, I am Joint Director of Medical Education on medical side. I am a Registrar of Punjab Dental Council. I am a Registrar Nursing Council. Nursing also I am heading. ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, it is because of the work and determination. I have achieved a lot. Again, with all humility, I am not telling you, I am not boasting anything. But ये बात जो आजकल आ रही है, you can do anything. But it needs your grit and determination. कोई फील्ड हो, कहना बड़ा आसान है कि यार ये कर रहे हैं हम इस प्रोफेशन में, हमसे ज्यादा तो समोसे वाला कमाता है. वो जो कॉलेज रोड पे ना, वो पता नहीं मिलेनियर होगा. तो ये बात नहीं है. The doctor, the R that has been added before your name, उससे डिराइव करो अपनी डिटर्मिनेशन. यू कैन रीच एनीवेयर. बाद में कुछ भी करना है. MDS जब कंप्लीट हुआ मेरा, तो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे फोन किया. ही वाज एट पटियाला. हाउ आर यू फीलिंग? 2005 आई रिमेंबर, मंथ ऑफ मई और जून, कि MDS हो गया है. क्या बात है, कैसे फील कर रहा है? I said, look, this is my last day with clinical dentistry.
सेम डे मैंने उसको ये डायलॉग बोला था, आज के बाद नो क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, बिकॉज आई हैड अ विजन और कुछ नहीं पता था, नो सपोर्ट, आई स्टार्टेड, पता नहीं ऐसे बोल दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज, सो जो बड़े क्लोज लोग होते हैं उनको बोल सकते हो, उसको मैंने बोल दिया। नाउ व्हेनेवर वी मीट, तो डायलॉग हर बार मुझे सुनाता है, यू वर सो फोकस्ड। बहुत बड़ी बात होती है इसके बाद कहना कि मैं डेंटिस्ट्री नहीं करूँ, क्लिनिकल डेंटिस्ट्री नहीं करूँ, आई विल गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग करके दिखाऊंगा, एंड आई डिड। कोई भी कर सकता है। अगेन आई वाज अ बीडी स्टूडेंट, आदि की स्टेज से निकला, एंड बिलीव मी, नो सपोर्ट। शायद आपने सुना होगा मिनिस्टर्स के साथ OSDs होते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के साथ इनकी, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ इनकी पोस्ट होती है, मिनिस्टर के साथ OSD नहीं होते। 2005 में मेरा पूरा हुआ। In 2007, I became the first official OSD, Class 1 officer to Government of Punjab, attached with the minister. I have worked with 5 ministers at OSD. That is, अभी क्या आपको पता नहीं, that's a great job, privileged job, जिसको एक status बोलते हैं. Then you are governing medical, dental, total medical field, nursing, pharmacy, everything. So just in crux, again with humility, I'm not boasting, I'm just motivating you, I'm just inspiring you. You can achieve any heights. Just determination. बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, frankly, ठीक है ना? अब ये भी कि you have to achieve 98% marks. Just open your mind. You don't need eyes, you need a vision. बस एक विजन आपने फिक्स करके रखना। कल को कुछ भी करना है, anything, डेंटिस्ट्री नहीं भी करनी, कुछ भी नहीं करना, no problem. Anything you can do. You are a graduate, you are a doctor, you are a skilled person, class 1 officer. उनसे जाके पूछो जो डॉक्टर नहीं बन पाए, जो 10th नहीं कर पाए, जो +2 नहीं कर पाए. You are privileged. The role of parents, unfortunately, I lost my mother in 2006 and father in 2012. But what is the value of parents? Because आपके पास है, मेरे पास नहीं है. अब जो फर्स्ट ईयर में आया है, ये poetry, share, what I'm spreading, I'm just spreading the message of love. लव वो नहीं है कि एक लड़का लड़की जो करता है. लव इज ब्रॉडर देन दैट, उससे बहुत बड़ा है. लव योर जूनियर्स, प्रोटेक्ट देम. आपकी ड्यूटी नहीं है उनको हार्ड बनाना कि हम इसकी रैगिंग करेंगे तो भी हार्ड होगा. एक शेर है जो मैं सुना नहीं चाहता, लेकिन that is very close to my heart, very very close to my heart. जब फर्स्ट ईयर में, खैर अब तो रैगिंग नहीं है, जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं ना, जहाँ रैगिंग होती है, द फियर, द एप्रीहेंशन या डर, कई इंसिडेंट्स हुए हैं. शायद उन इंसिडेंट्स की वजह से इतना लेक्चर स्टार्ट हुए, एंटी रैगिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ. 3 Idiots भी आपने देखी है, टेबल नंबर 21 भी शायद आपने देखी होगी. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, टेबल नंबर 21. अब माँ और बाप, 2 एंटिटीज. हमें लगता है कि माँ बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट शी इज वोकल. फादर का पता नहीं चलता. Might be, this is a common feeling.
might be father loves more than mother. उस माँ ने +2 के बाद अपना बच्चा यहां भेजा है कॉलेज में। आपकी एक आवाज से, मोबाइल पे एक हेलो से उसको पता चलता है that student who is suffering from ragging. I'm talking about that sensitive person, that beautiful person. Just one dialogue of your mother. बेटे कैसा है? And the reply was, मम्मा कुछ ठीक नहीं है। This dialogue, अब मैं फिजिकल तो बात नहीं कर रहा, this will kill your mother, and you, the seniors, are responsible for that, for that condition of, for this dialogue of that first year student. हर बंदा अलग है, नेचर सबकी अलग है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई सॉफ्ट है, यू कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। वो एक डायलॉग जो मां को जाएगा, बस वो नहीं जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बहुत एक सेंसिटिव शेयर, बिकॉज इसलिए नहीं बोलता बिकॉज आई बिकम इमोशनल फॉर दैट शेयर। ये मेरी जिंदगी की कहानी है 4 लाइनों में। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, मुझे मेरी मां की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, मुझे मेरी मां की दुआओं का असर लगता है। अब ये 2 लाइन्स रैगिंग को रिलेट करती हैं। मुझे मेरी मां की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, मुझे मेरी मां की दुआओं का असर लगता है। एक दिन से उस दिन से मेरी मां सोई नहीं चैन से। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। दिस इज सो सेंसिटिव शेयर। दिस डायलॉग, दिस रिप्लाई शुड नॉट गो टू अ मदर। यू ऑल हैव मदर्स, फादर्स। ये डायलॉग नहीं वापस जाना चाहिए, पर दिस वॉज दी मैसेज जो मैं अभी आपको देना चाहता था। एंड अगेन कमिंग बैक टू, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया था, बस 5 मिनट आपके बाद दूंगा। बोर हुए तो आई कैन स्टॉप। 5 मिनट्स ओके। ये ना अभी हाथ से मुझे याद आया, आज व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि ना मुझे कुछ देर बाद रियलाइज हुआ कि मैं ना ऐसे वेव कर रहा था अपनी पड़ोसन को, तो बाद में पता चला वो शीशा साफ कर रही है। वो कुछ शीशा वो वेव नहीं कर रही थी, मैं रिप्लाई में वेव कर रहा था। तो ये मैसेज था। अच्छा, फाइनली नाउ यू आर कंप्लीटिंग योर बीटीएस या इंटर्न्स। अब वही अब बात है जो सेंसिटिविटी की आती है, जिनको ना इतना बात उनकी होती है, सिंपल आम बंदे कुछ लोगों की बात भी होती है कभी, बट एक इंटरेक्शन, द वे यू सिट इन योर क्लासेस, यू सिट वेरी क्लोज। यूजली मेरे टाइम में हम 20 लोग थे, फ्रंट लाइन 11 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, आगे लड़कियां, पीछे लोग सब लड़कियां। दिस वॉज अ पैटर्न ऑफ अ क्लास। तो हमारी क्लासेस में भी ऐसा अभी ऐसे आपके होता होगा। वी सिट सो क्लोज, वी आर सो क्लोज। पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, हॉस्टल्स हो रहे हैं, सब कुछ है। जिंदगी 4 साल बिल्कुल साथ चलती है, एकदम ऑफ।
आफ्टर इंटर्नशिप घर चले गए, पता नहीं कब किसी से मिलना नहीं मिलना। तो एक जो बहुत अच्छा शेर है, मुझे पसंद है कि तू मेरी किस्मत में ही नहीं था, तू मेरी किस्मत में ही नहीं था, वरना फासला इतना भी नहीं था। अच्छा, इंटर्न्स की बात कर लो। एक मैं प्रोस्थो इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मुझे कभी नहीं आया। अच्छा, फाइनल ईयर में ना बेंचेस बनाने होते हैं हमने, तो वो पैकिंग बुकिंग करके हमने जब मैंने वो लास्ट डे वो खोला तो बेंचर मेरा रेड निकला। रेड, मैं फैक्ट बता रहा हूं, वहां था कि वो फीड कोड की जगह सेल्फ कोड डाल दिया था, तो रेड बिकम्स रेड। तो माय टीचर आज तो कहती ये क्या है? अब मैं तो नहीं बोला, पीछे वाला बोला इनफ्लेम जिंजीवा है। अच्छा, मैं आइए सर, आइए। डॉक्टर संजीव गोयल इज registrar, Guru Ravidas Ayurveda University, and Dr. Rakesh Sharma is Dean. He's a retired director also Ayurveda. He is Dean, Guru Ravidas University. अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, BDS और MDS के बाद, like you can do anything, BDS, MDS. Interestingly, I have started my PhD in Ayurveda. मतलब कहाँ बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाते हो आप? So, I have started doing PhD in Ayurveda under Dr. Rakesh Sharma. He is my guru. मेरे सामने बैठे, प्लीज एक बार फिर कि कुछ भी कर सकते हो आप, जस्ट यू हैव ग्रेट एंड डिटर्मिनेशन। अच्छा, प्रोस्टेट की बात कर रहा था, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू प्रोस्टेटोलॉजिस्ट सिटिंग ओवर हियर, जो प्रिंसिपल सर प्रोस्टेटोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, आजकल तो खैर टीचर बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मेरी उम्र के हैं, तो लाइक ए डेंचर, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, ये तो ड्राई होते थे टीचर्स हमारे। अच्छा, आप कुछ भी करके ले जाओ, इनको पसंद नहीं आया। वो आपने टीथ सेटिंग की पूरी रात लगा दी, किसी पीजी से भी हेल्प ली, जो प्रोस्तो में कर रहा है, पीजी करा, पीजी आएगी आप, और करके उनके आप लेके गए सेटिंग। एंड मेरा तो ना बताऊं क्या हुआ हाल, कि कैसे मैं लेके गया, उसके बाद मेरा मन ही उठ गया प्रोस्तो। वो प्लास्टर है, उसको लगा के एमडी सेटिंग करके ले गए सर, मैम ये तो व्हाट शी डिड की आदत होती है, तो वो पकड़ा, व्हाट इज दिस, अच्छा, वो सारा टेंशन नहीं टूटता, दिल टूट जाता। वो बस वो हो गया मेरे साथ। उसके बाद कसम खुदा की मैं उस तरफ नहीं गया। अच्छा, वो बात है ना, जिस चीज से आप भागते हो
वो फिर भगवान भी आपको भागने नहीं देता। आई एम एन ओरल सर्जन, मैंने ओरल सर्जरी में एमबीएस किया, प्रोस्टेट में कभी करना नहीं चाहता था। मुझे बीवी प्रोस्टेटोलॉजिस्ट दी। उसना हम तो हर बात से क्या है वो शायरी बना लेते हैं। वो जो टूटा ना उसके बारे में एक बहुत अच्छी आपको एक नज़म सुनाऊंगा मैं। प्रोस्थेटिक में प्लास्टर पीछे लैब में जाते हैं, यूपी मिक्स करते हैं, तो उसको बना के फिर पोर करते हैं। whatever you want to have, mandible, maxilla, whatever, कुछ भी उसकी वही शेप बन जाती है, that उसको पोर करते हैं, तो वही बाद में आके निकलता है। तो ये जो स्टैचूज हैं मार्केट में मिलते हैं, कुछ नहीं है, तो ये सब ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। ये जो डमीज होती हैं और ये मैनिक्विन्स हैं, ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसके बाद लैमिनेशन की होती है इनके ऊपर। चलो ऐसा करो, चलो ऐसा करो, चांद से कुछ मिट्टी लो। चलो ऐसा करो, चांद से कुछ मिट्टी लो, फिर उसमें मोहब्बत का पानी डालो। चलो ऐसा करो, चांद से कुछ मिट्टी लो, उसमें कुछ मोहब्बत का पानी डालो, कुछ प्यार का इत्र डालो, फिर उसको गूंथ लो। फिर उसको गूंथ लो, अच्छी तरह गूंथ लो, फिर उसके दो बुत बनाओ। फिर उसके दो बुत बनाओ, मेडिकल मैक्सिला नहीं बोल रहा। फिर उसके दो बुत बनाओ, बहुत ही सॉफ्ट ये नज़म है। चलो ऐसा करो, चांद से कुछ मिट्टी लो, फिर उसमें मोहब्बत का इत्र मिलाओ, प्यार मिलाओ, अच्छी तरह गूंथ लो, पानी डालो, फिर उसके दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा, एक मुझ जैसा। एक तुम जैसा, एक मुझ जैसा, एक तुझ जैसा, एक मुझ जैसा। फिर ऐसा करो, इन बुतों को तोड़ दो। फिर ऐसा करो, फिर इन बुतों को तोड़ दो, इनको फिर उठाओ, फिर इसमें मोहब्बत का पानी डालो, प्यार का इत्र डालो, अच्छी तरह गूंथ लो, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लो, अच्छी तरह गूंथ लो, बहुत अच्छी तरह गूंथ लो, फिर इसके दो बुत बनाओ, फिर इसके दो बुत बनाओ। लास्ट लाइन, तुम में कुछ कुछ मैं रह जाऊं, मुझ में कुछ कुछ तुम रह जाओ। So, this is the union, the togetherness, the companionship you must carry. These will be the memories throughout your life. ये सब्जेक्ट्स की कहानियां, रैगिंग, ये वो सब, ये बातें सब अलग। जिंदगी, प्रोफेशन से ऊपर जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है जिंदगी। वो कहते हैं कि लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, वो पुराना डायलॉग है ग्रेजुएशन का, बड़ी होनी चाहिए। दैट शुड बी द थिंग। अब एक अच्छी नज़म के साथ मैं आज बंद करूंगा यहाँ पे, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। वो जो मैंने इंटर्नशिप में लिखी थी, अच्छा, I have a small family. My family, पता चल गया आपको, my wife is a prosthodontist. तो in my family I have one wife, one son and one daughter. बताना होता अपने बारे में। तो अच्छा, वो अब जरूरी नहीं कि वो
वो बाद में भी चले। मुझे याद है जब हम में तुम में प्यार हुआ था, एक पेड़ के साए में करार हुआ था। मुझे याद है जब हम में तुम में प्यार हुआ था, एक पेड़ के साए में करार हुआ था। This is for my wife and this is for my class fellow also. और नहीं करना, she यार सच्ची वो मेरी क्लास फेलो है। अभी तक चल रही है ये कमेंट है ना, मुझे यही चलनी चाहिए एंड तक। मुझे याद है जब हमें तुम में प्यार हुआ था, पेड़ के साए में करार हुआ। वो रूप के जिस रूप से कलियां लग जाएं, वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माएं हटाएं, मैं खाने निगाहों के अदाओं के तराने दे डाले उसने मुझे मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसी की शाम थी, ऐसा ही समा था, चांद भी अधूरा था, जमाना भी जमा था। मुझे याद है, मुझे अब तक याद है जब हम में तुम में प्यार हुआ था, एक पेड़ के साए में करार हुआ था। हमारा कॉलेज बड़ी अच्छी लोकेशन पे था। ये कॉलेज बहुत अच्छी लोकेशन में है, ये आसपास हरियाली है। अच्छा डॉक्टर अक्षय, इनको ना हरियाली और झाड़ियां बड़ी पसंद होती है। हसीन वादियों के वो पुरकैस नजारे, हसीन वादियों के वो पुरकैस नजारे, लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे। अंगड़ाइयां लेकर मेरी बाहों के सहारे, अंगड़ाइयां लेकर मेरी बाहों के सहारे, गुलनार सी नजर आती थी वो शर्म के मारे। हर तरफ थे हुस्न मोहब्बत के सहारे, उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे। ऐसी ही शाम थी, ऐसा ही समा था, चांद भी अधूरा था, जमाना भी जवां था। मुझे अब भी याद है, मुझे आज भी याद है, अब भी याद है जब तुमने मुझ में प्यार हुआ था, एक पेड़ के साए में करार हुआ था। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। आया तो किसी और काम से था मैं। सर मैसेज ठीक चला गया दिन का। इतना रह गया वो भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये भी नहीं करना कि प्यार करना, ये नहीं भाई। लिव योर लाइफ, लिव लाइफ किंग साइज, बी हैप्पी। योर पेरेंट्स शुड बी प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। थैंक यू। Thank you, sir, for sharing your valuable time with us and being privileged with your words and experience you shared. We welcome our guests again and please give a big round of applause for them. Connected. And now we request our principal sir and vice principal sir to please honor our chief guest with memento of respect and honor. Thank you. This college is like a sense of gratitude. Grateful they are honoring me, but before that, we have esteemed guests over here. I want to honor my guru and my dear friend Dr. Sanjeev and Dr. Rakesh Sharma. Please sir, आप से भी आइए। सबसे पहले एक मिनट का रास्ता है, तो वो मोमेंटो लेके आ रहे हैं। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। और जो आज जो भी कहा है वो एक्जेक्टली सच है। हर किसी की कहानी है। पर्सनैलिटीज डॉक्टर राकेश शर्मा डी, he has been director Ayurveda for a long period at Chandigarh। अभी आजकल डीन है गुरु रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी में। Dr. Sanjeev Goel, my dear friend, he is a registrar Ayurveda Council.
डॉक्टर के शर्मा मेरे गुरु भी हैं। अलग अलग जिंदगी में आप चलते हो, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग लोगों से डील करते हो। Believe me, I was new to Chandigarh. जब मैं गया, they were already there. दोनों हम उम्र हैं, लेकिन डॉक्टर के शर्मा को मैं थोड़ा सा ये गुरु ऊपर रखता हूँ। They supported me. They cared. They treated. Well, I have no words. Today they have come for the ongoing examinations as observer. आपके आयुर्वेदा कॉलेज में जो एग्जाम चल रहे हैं, ऑब्जर्वर बन के आए तो लकी। सो मुझे पता था कि मैंने इधर जाना, तो मैंने कहा सर आप उसके बाद इधर आ जाना एग्जाम के बाद। तो अनएक्सपेक्टेडली एक स्टेज तक आपके पेरेंट्स चलते हैं, उसके बाद कुछ और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। लाइफ इज डायनामिक। जो प्यार, रिलेशन, मोहब्बत मुझे इन दोनों से मिला है, ये मेरी जो पेरेंट्स हैं उसकी याद को कम करते हैं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। दे आर वंडरफुल पर्सनैलिटीज। आप ग्रेजुएशन करोगे, बाद में चले जाओगे, लाइफ में जाओगे, दे आर सो हेल्पफुल। हर स्टेप पे जहां भी आप पढ़ोगे, नॉट ओनली फॉर मी, दे हैव अ बिग 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 हार्ट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर अक्षय, उसके रिजल्ट्स भी थे मेरे ख्याल, उसका फ्लावर। I request Dr. Akshay to please honor Dr. Rakesh Sharma. Please put your hands together. Wait. Thank you. Connected. आइए सर, आइए। हाँ जी सर, थैंक यू। सर आगे सर। हाँ जी सर, सर थैंक यू। ये रंगोली कंपटीशन और जो फ्लावर अरेंजमेंट के रिजल्ट्स हैं। सो इन फ्लावर अरेंजमेंट द फर्स्ट पोजीशन फाइनली in the Rangoli arrangement, first position, second year. And believe me, इससे अच्छा वेलकम हमने आज तक नहीं देखा। One side class, one side Rangoli. That's gratitude. Thank you. With your presence here. And now we want to hand over a mic to the group gift for today's event. Thank you. Thank you, Ishnur and Agam. Greetings to one and all present here today. I hope you all are enjoying the program. Adding little melody to this,
Let me now invite on stage Karanjit Singh from first year to present us a song. Please give him a big hand. Good afternoon, dear teachers and respected sirs. Today I, Karanjit Singh, of first year, is here to sing a song. ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਐਤਬਾਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਬਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਏ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਖਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ Disconnected. Every function is incomplete without music and dance. So for presenting a dance performance, I would now like to call upon Arushi and Snigdha from second year to entertain us. Please give them a big hand.
perform a skit. इस शो की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका असल दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। धन्यवाद। When someone gets rude, keep a smile on your face. When you stay on high roads, keep your joy and take away their pain. Scene 1, जानवी का घर। हेलो, हाँ जी बहन जी, साडी कुड़ी दी एडमिशन हो गई है डेंटल कॉलेज में। हाँ जी, चलो मैं तुहानू कल कॉल करती हूँ ना, डिनर टाइम हो गया। हाँ जी, ओके जी, बाय। जानवी बेटा, खाना खा लो। आज मेरी बेटी की एडमिशन हुई है डेंटल कॉलेज में। चलो बेटा अब आप सो जाओ, ठीक है? कल कॉलेज जाना है। मम्मा फिर मेरी कोई रैगिंग तो नहीं होगी ना कॉलेज में? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होएगा, कोई रैगिंग नहीं होएगी आपकी, आप डरो मत। ओके, गुड नाइट। जानवी is having a dream, a vivid dream, एक भयंकर सपना जिसमें उसकी रैगिंग हुई। Dream scene 2, somewhere at SKS's dental college. एक्सक्यूज मी, यस, फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ पे है? एक्चुअली मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ तो पता नहीं। हाय, आई एम जानवी। आप पंजाब। अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलो क्लास में चलते हैं। चलो, फिर हमारी क्लास है कहाँ? अरे गाइस, क्या देख रहे हो? यही तुम्हारी फर्स्ट ईयर की क्लास है। ओह, चलो बैठो। चलो बैठते हैं। चलो गाइस, इंस्टाग्राम पर लाइव चलते हैं। चलो बैठो। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये हमारी क्लास है और ये हमारी पार्टी हो रही है। सीनियर्स की सेना जूनियर्स की रैगिंग करने के लिए आते हुए। गाइस देख रहे हो, कॉलेज में नवे मुर्गा मुर्गी आए थे। हाँ, बड़ी बात निकले ना दे। डोंट वरी, we'll drop them off. जो कह रहे थे ना पार्टी हो रही है, इनको इनके सीनियर्स दिखाते हैं। ओए, किधर गिर रहे हो? बैठो, बड़ी हेडेड लाई हुई है। दांत कटी जल्दी करोगे। अब तुम क्या क्रॉस लेग्स करके बैठी है? खड़ी हो, खड़ी हो। मुझे 4 बार है ना सिर पे, इनको मुझे 4 लाइनें सुनानी जल्दी। सुंदर काले मेरे बाल, बैट्समैन ने दिया कमाल। हाँ, टीवी देखना है हम यहाँ पे। टीवी देखना 10 मिनट में बनी घूम रही है। बैठ जा। चलो सारे तो लाइन बना के खड़े हो जाओ। चलो। तू इधर आ। ये क्या प्रीति बन के घूम रही है? देखो कोई कबीर सिंह नहीं मिलने वाला इस कॉलेज में जब तक मैं यहाँ हूँ। तो तेरे बाल है ना? तो कर 2 कुत्ते लेके आ अभी। हाँ, लेकिन कॉलेज में कॉलेज में तो करते हैं प्रोफेशनल कॉलेज। आप करके कुत्ते हट। ओ येलो सूट पहन बाहर आ। इधर सामने स्कूटर चला के दिखा दो। सॉरी नहीं, स्कूटर
आना चाहिए, बहुत लगे गाइस। पेरेंट्स को प्रॉब्लम भी क्या चलता है, तो ऑफिस में रिक्वेस्ट करना चाहिए। चलो चलो चलते हैं ऑफिस। ड्रीम सीन 3 एट ऑफिस। हेलो, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी, मैं थोड़ी देर तक कॉल करती हूँ। ओह प्रेशर, आगे मेरा फोन ट्यूशन वेट करो, इम्पोर्टेंट वर्क। एक्सक्यूज मी मैम, यू आर नॉट एक्सक्यूज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? बट मैम हमारी इस कॉलेज में रैगिंग नहीं होती। इस कॉलेज में रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती। ਇਹ फालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ। ये था जानवी का अपना दृश्य, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। चलो देखते हैं जानवी के कॉलेज का पहला दिन। जानवी बेटा उठ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया। बेटा तुम डरे क्यों लग रहे हो? मम्मा मैंने ना एक भयंकर सपना देखा जिसमें मेरी रैगिंग हो रही थी। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, आप रेडी हो जाओ कॉलेज के लिए। ओके Scene 5 at SKS's Dental College, reality. Excuse me? Yes? First year की क्लास कौन सी है? Actually मैं भी first year में तो पता नहीं। Hi, I am Janvi. Hi, I am Prinda. Hello. Hi. 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 Hi guys. Hi. See yourself. I'm not second year में। Guys, if you किसी भी चीज की लोड़ हो, you can always come to us. Yeah, so we are like family, okay? If you wanna take my notes, you can. कोई भी काम नहीं कर रहे, help चाहिए और मेरे नंबर ले लो, I will help you. मेरी बात सुनो, the only thing that you need to learn is you have to address your seniors as ma'am and sir. So all the best. Bye. Bye. Take care. Oh, Sashira Reddy. बच्चों, तुम्हारी किसी ने रैगिंग नहीं की थी? जे किसी ने रैगिंग की थी ना, तो मैं वो जरूर दसना। इस कॉलेज में रैगिंग लगे स्ट्रिक्ट एक्शन निकालना। ठीक है बच्चों, जरूर दसना। जैसा हमने सोचा था कि कॉलेज में हमारी रैगिंग होगी वैसा तो कुछ नहीं हुआ, सब बहुत ही हेल्पिंग है। हाँ हाँ, यहाँ पे सब बहुत हेल्पिंग है। हाँ, यहाँ कॉलेज स्टाफ टीचर सब बहुत अच्छे हैं। Ragging does not break the ice, it breaks the career, family and life. So ragging is a crime. Do not engage and support it. We students of SKS's Dental College. Srafa pledge that we will not indulge in ragging. Thank you. Indeed valuable as well as enjoyable. Well performed to all of you. Dear all, with this beautiful day comes to an end. I hope you all enjoyed the event. Please be seated everyone. We're left with 2 performances. It won't take much time. Poetry is when an emotion finds a thought and thought has found words. Carrying the poetic ribbon with grace and glory, let's welcome Sakshi Serene, final year student, for a poem recitation. जिंदगी भर का वो प्यार बन जाते हैं,
का वो प्यार बन जाते हैं, कुछ लोग सफर में परिवार बन जाते हैं। जूनियर्स को तपती धूप से बचाने के लिए, जूनियर्स को तपती धूप से बचाने के लिए सीनियर्स खुद शीतल बहार बन जाते हैं, सीनियर्स खुद शीतल बहार बन जाते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल प्रेजेंट हियर। मैं साक्षी श्री फाइनल ईयर की स्टूडेंट आज सीनियर जूनियर के प्यारे से रिश्ते को एक पोएम में पेश करने जा रही हूँ। इस लड़की को तो अकल ही नहीं है बात करने की, रिस्पेक्ट करनी सिखाओ इसे, नहीं तो खुद को पहचान नहीं पाएगी। बोलती तो ऐसे है जैसे कॉलेज इसके बाप का हो, बता दो इसे इसकी औकात क्या है। कुछ ऐसे ही शब्द मेरे लिए लिखे गए थे कॉलेज के इंस्टा पेज पे, जमीन खिसक गई थी पैरों तले उस पोस्ट को देख के। शायद ये रैगिंग करने का नया तरीका था। 2 महीने हुए थे कॉलेज में और स्वागत कुछ इस तरह का। कौन थे वो? सब मेरे सीनियर्स थे। पोस्ट को डिलीट करवा, पेज को रिपोर्ट किया, हम सब हैं साथ तेरे कहकर मुझे सपोर्ट किया। रैगिंग क्या होती है जानकर भी मैं अनजान थी, पर उस पोस्ट ने ना चाहते हुए भी मुझे कॉलेज में दी एक अलग पहचान थी। दीदी भैया से मैम सर तक का सफर जूनियर तय करते हैं, फिर मैम सर से दीदी भैया तक का सफर खुद सीनियर्स तय करवाते हैं। शुरुआत में कैसे पढ़े अनाटमी, DADH, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी कुछ भी ना समझ में आता था। प्रैक्टिकल वर्क की वीडियोस देख तो मानो मेरा सर चकराता था। टेंशन ही नहीं कहकर सीनियर्स ने ही साथ निभाया है। टीचर्स के बाद इन्होंने ही हमें लेक्चर समझाया है। हर कदम रखने से पहले इन्होंने मुझे कदम रखना सिखाया है। देखकर समझ और समय अपना मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। आज मैं भी सीनियर बन गई, मेरे भी जूनियर्स आए हैं। अपने सीनियर्स जैसे हम भी देते इनको सलामी है। जो प्यार मुझे मेरे सीनियर से मिला उसे अब मैं अपने जूनियर्स के साथ बांटना चाहती हूँ। रैगिंग का नामो निशान, एक अच्छी इंटरेक्शन चाहती हूँ। कोई भी आए दिक्कत तो बेशक बेझिझक पूछ लेना। कभी भी करो टीचर से कोई हरकत तो हमसे शेयर जरूर करना। होस्टेस को भी कभी याद आए घर की तो फोन हमें कर सकते हैं। अगले दिन मेरी माँ के हाथ का हुआ बना हुआ टिफिन वो भी खा सकते हैं। दुआ यही है ईश्वर से मेरी कि हम सब एक साथ प्यार से रहें। कभी कोई आए मुसीबत तो एक परिवार बन सामना करें। आज गर्व से मैं कहती हूँ शहीद करतार सिंह सराबा डेंटल कॉलेज में रैगिंग मना है। यहाँ हर एक सीनियर अपने जूनियर के साथ खड़ा है, यहाँ हर एक सीनियर अपने जूनियर के साथ खड़ा है। धन्यवाद। Very nice. Now I would like to invite Muskan Saini from first year for a singing performance. Good afternoon everyone. My name is Muskan Saini from BTS first year and I am going to perform a song. तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज़ जन्नत है।
तैनू आवे ना हो ना होए प्यार तेरे नाल असर है हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना अखियां दे विच घुमदा सोना चेहरा दिल जो मेरा चैन जरा भी पावे ना मेरी जिंदगी दे विच मेरे सजना वे मेरे तो वध खास जगह भी तेरी है तेरी हर एक